Hello everyone, welcome to LV Podcast. I am Anishreya and I am here with a very special guest with us today, that is Dr. Mamta Vishnoi. She is the head of Department of School of Pharmacy. Hello ma'am, Yeah. welcome. Thank you, Annie. Thank you for the invitation. So Mamta ma'am has done her PhD from Jaipur National University, Masters from Dr. HSG Central University, and postgraduate from Jamia Hamdard. Yes, Right, ma'am? ma'am. So, ma'am has written a number of research papers and done a lot of research on the same subject, that is pharmacy. And, ma'am, we are very excited to have a conversation with you. Thank So, you. ma'am, starting with my first question. So, what is pharmacy all about? Actually, pharmacy, I should say, pharmacy is a art, practice, and profession which deals with compounding, dispensing of medicines, safe and effective use of medicine, storage and disposal of safely medicines for the well-being of the patients. So it actually pharmacy has four courses. Okay. If we I talk about like it starts from diploma in pharmacy, then bachelor of pharmacy, then master in pharmacy, and in between we are having a doctor of pharmacy, that is Okay. Pharm D, and obviously last is the PhD. So a diploma course is all the four streams are career oriented. Even after D Farm, we have lots of options. Career opportunities are there in government sector, in private sector as well. They can pursue further D Farm. They can make a combo with LLB also. Okay. As a legal advisor in industries, and after diploma they are eligible for as a registered pharmacist for government setup, clinics and private hospitals and all. So, ma'am, what is exactly in the curriculum? As students are studying in the university, so what exactly is in the curriculum? Actually, all the curriculums, in the case of D Farm, B Farm, Farm D. Farm D is actually doctor of pharmacy, that is specially inclined towards the clinical practices of the pharmacist. So all the syllabus is very much enriched with the inculcating, including all the parameters like NEPs, parameters are there, Bloom taxonomies, all the parameters are there, and it includes, it gives weightage for theory as well as practical as well. So in theory, there is theory lectures include tutorials also, in which we have small groups interactions with, so that we can deeply can judge what is the learning of the particular students. Okay. And after that we are having assignments also. So that is self directing study, in which student study for the all the big data. Okay. Data mining is there, how to written communication they will present, and practical as well. So practical in case of pharmacy is very much important, because whatever we learn in theory, that all implement in or practicized in practicals. Okay. So apart from practicals, we are having field visits to provide them real world situations and circumstances, situations, how they will manage them. Yeah. And afterwards we are having industrial visits, industrial trainings. In case of diploma, they are having 15 hours training in PSC or CSC under the professional guidance. And in case of B Farm, they 150 hours training is there in industry to know the real setup, where they will practicing their pharmacy. So basically, practical approach is very important. Very important in all these cases. So, ma'am, going more ahead, what is IPR? What is the value of IPR? Yes, this is very much important question in this case, because in case of drug discovery and development, lots of energy, time, all are we devote in case of a new molecule. So IPR is actually a safeguarding for your ideas and innovations
which so for that there are multiple like parameter setups criteria are like patent, copyright, trademarking, all these. But in case of our pharmacy IPR, we just go for patent. Okay. So once any new molecule, new entity is there, and under this patent provision, we have 20 years coverage of that marketing, selling, and exporting that particular combination of the drug. Okay, so Yeah. it's likely to It's be a vast subject, yeah, right? yeah. So, ma'am, what are regulatory affairs? There are many times the terms come, so student would love to know what are regulatory affairs. Regulatory affairs, actually, in regulatory affairs, we know about all over the world regulatory bodies which governs or which the pharmacy practices. Like it covers manufacturing, standardizations, exporting, importing. All these are guidelines. In our case, in India, we are having CDSCO, Central Drug Standards Control Organization, under which we several senior drug inspectors are there, government analysts are there, they practice and regulate this profession. And other countries having their regulatory bodies. In US we know very well, FDA is there. In Australia, TGA is there. In European countries, their European Union is there. So in there is European Commission. Okay. So all these and one more is a WHO also regulate all these standards and regularize the practices to come up on a same platform and harmonizing all the standards. So it's very vast and it also come under WHO. Yeah, sure. So it's all related to health and hospitalizations and everything. So, ma'am, what are the career options? There, as you said, there are many degrees, and soon after having the D Pharma, they can have jobs or the career options. So, what are they? Actually, pharmacy is a career-oriented professional course. So at each and every level, we have several opportunities. Like I already told you, after DPharm we have several options. Even after get registered with the State Pharmacy Council, the student or the can practice their own retail shop, can open their pharmacy in government setup and all. After BPharm, they are eligible for more opportunities, like they can apply for government sector like drug control officers, government analyst. In private sector, manufacturing, chemist, quality control, quality assurance, pharmacist, community pharmacist, hospital pharmacist. So many pharmacies are ambulatory patient care pharmacist. So in apart from these, they can opt for PharmD also as a lateral entry for if they want to go in clinical trial, clinical research setups, and they further go for post graduation MPharm. In MPharm, as per this is a Pharmacy Council of India regulated this course, so we are having 13 streams are there. Okay. In MPharm specialization. And PhD is obviously there. Apart from all these, pharmacovigilance, in which we study different type of side effects after we take medicines. So in pharmacovigilance we find out, or we search, we collect, analyze data. What is the side effects is there, or any adverse event is there. Okay. So there are regulatory affairs as well. Data mining, data analyst. So many opportunities are there after BPharm, MPharm, and obviously in after PhD you can pursue as a assistant professor in academics also, and R&D, research and development, formulation and development. So even with specialized certificate course, you can choose any other streams like LLB. After doing LLB, you will be a legal advisor. After taking a 1 year short course in clinical trials and all, you can opt as a clinical trial advisor, associates.
So we can say there are number of career yeah. options. You know, there is nothing that can stop you at. Yeah, sky is the limit in case of pharmacy, I should say. Oh yeah, Yeah. I see. So Yeah. ma'am, there is this question that what is the difference? Is there any difference between pharmacy and a drugstore? Yes, people actually mix both, Yeah, and it sounds same, exactly. but actually pharmacy is a drugstore, but it has all the compounding and dispensing facilities also. Mm-hmm. So like in for our in indoor patients in hospitals, they as per their age, as per their BMI and weight, we compound the personalized medicines. Like in case of children, we can't give 500 mg para, Yeah, 650. that will be So too. accordingly their body mass index and age, so there is they dispense their self. And in case of dialysis, several patients are there in case of kidney problems, and so dialysis solutions are prepared in hospital pharmacy. Yeah. So they are having for a small manufacturing or dispensing unit. Even repacking is also considered as dispensing. So if some big pack is converted into small doses form or small packet pack size, so this is also considered as dispensing. Okay. While in case of drug store or retail store, they only already formulated manufactured drug they sell on the basis of prescription or non-prescription medicines are there, which we can say OTC, over the counter drugs. And they also sell cosmetics, medicated cosmetics, and nutraceuticals also. So pharmacy, we can use word pharmacy where dispensing is going on or Okay. dispensing practices is performed. So pharmacies are basically set up in the hospital setup mostly. Hospital setup is there, community pharmacy Community is there, pharmacy, yeah. social pharmacy is there, and they spread awareness about national immunization program, national TB eradication program, how to take medicines. In case of prescription, they guide the patients how to take the, how you, when you have to come for refill the prescription and all. So pharmacist role is actually very significant Yeah. for the safe and effective use of the medicines. तो मैम हमें जैसे देख रहे हैं दुनिया बदल रही है, हर दूसरे दिन एक नई बीमारी, हर दूसरे दिन एक नई मेडिसिन. तो मैम आप स्टूडेंट्स को कैसे कनेक्ट रखते हैं कि फाउंडेशन से, कि जो सिखाया गया है आपको, आपके ज़माने में जो सिखाया गया है और आज के टाइम में जो सिखाया जा रहा है, उन चीज़ों को कनेक्टेड कैसे रखा जाता है? तो एक्चुअली क्या है कि फार्मेसी में बेसिक नॉलेज तो जरूरी है ही है, उसके साथ साथ स्टूडेंट डे बाय डे अपने आप को अपडेट रखे न्यू टेक्नोलॉजी. तो उसको जो भी न्यू प्लेटफॉर्म, जो भी साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स है, उस पर जो न्यू रिसर्च आ रही है, कुछ नए मॉलिक्यूल्स आ रहा है, कोई रोबोटिक नया डेवलपमेंट है किसी के लिए, लाइक यू नो AI, मशीन लर्निंग, ये हर किसी फील्ड में आ ही गया, आई गई है, राइट. तो स्टूडेंट को अपने आप को उसी जो ढर्रा पुराना है वो तो आना ही चाहिए, वो तो बेसिक है एक्चुअली, वो तो बेस है. तो बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही शुड इनकलकेट सच टाइप ऑफ हैबिट इन हिम और हर, कि वो कीप ऑन अपडेटिंग हिम और हर सेल्फ विद टाइम, with new techniques, with new technologies. So उस केस में उसको खुद को भी अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए he or she can join short term any courses like clinical trials है, many softwares are there. तो उन सॉफ्टवेयर का जहाँ यूज हो रहा है, तो अगर वो भी अपने साथ उस तरह की चीजें अपने आप को सीखता रहे, कुछ कोर्सेज कर लिए, तो इस तरह से वो इस नए जो चैलेंजिंग एरा है उसमें अपने आप को कॉम्पिटेंट बना के रख सकता है विद ऑल दीज थिंग्स. फाउंडेशन क्योंकि बहुत ज़रूरी है. फाउंडेशन नो डाउट वो तो जरूरी है, उसी का ही ये सब एडवांसमेंट है, तो वो तो आना ही चाहिए. लेकिन उसमें ये सब चीजें कैसे आप इम्बाइब करते हुए चलोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. राइट मैम. सो मैम, एज वी नो कि आप स्कूल ऑफ फार्मेसी की HOD भी है, तो आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इट्स अ टफ जॉब, हम समझते हैं. तो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं एज अ स्टूडेंट, कि कैसे इनको समझाया जाए, बताया जाए?
एक्चुअली है तो टफ जॉब ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को ये लगता है कि क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो अगर स्टूडेंट थोड़ा प्रोफेशनली अपने आप को मेंटेन, मतलब उस वे में रहे और पंचुअलिटी भी रहे और अपने को थोड़ा एथिकली उस तरह से मोल्ड करे अपने आप को कि आई हैव टू फुलफिल ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू सर्व द सोसाइटी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो उसके जो एक कम्युनिकेशन स्किल है वो अपने अच्छी रखे, इंटरपर्सनल स्किल, ह्यूमन बिहेवियर, जो अपना इंटरपर्सनल बिहेवियर है। तो ये सब चीज़ें तो हम उनको उस तरह से गाइड भी करते हैं कि यू हैव टू सर्व द ह्यूमैनिटी, यू हैव टू सर्व द सोसाइटी। तो आपको एक उस तरह की सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट है कि इस तरह से, मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर, क्योंकि आपको मेडिसिन और उनकी सेफ और इफ़ेक्टिव यूज़ उससे रिलेटेड, पेशेंट कंप्लायंस से रिलेटेड, तो बहुत सारी, बिकॉज हेल्थ केयर के आप एक इंटीग्रल पार्ट हो बीइंग ए फार्मासिस्ट, तो आपको बहुत सारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है। तो आप अपने आप को उसी तरह से ही तैयार करो, है ना। तो आपको अपने थोड़ा बिहेवियर वाइज भी उसी तरह से मैच्योरिटी लानी पड़ेगी अपने उसमें। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल इज अ वेरी फर्स्ट थिंग इन द फार्मेसी, है ना, क्योंकि आपके ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारियां आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो मैम, हमने देखा है यू हैव रिटन अ नंबर ऑफ रिसर्च पेपर, है ना, और एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं, रिसर्च पेपर लिखना मुझे नहीं, मतलब बहुत टफ जॉब लगती है। ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, लेकिन बहुत टफ जॉब है, बहुत समय लगता है। और अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो है मुश्किल, बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, क्यों ही लिखना है। बिल्कुल। तो मैम, आप स्टूडेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करते हैं रिसर्च पेपर लिखने के लिए, उनको कैसे इनकरेज करते हैं? नो, आई कैन यूज अ टिप। राइट, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मेरे को ये लगता है कि रिसर्च के लिए उनके अंदर से ही थोड़ी सी इंस्पिरेशन आनी चाहिए बच्चे को, तभी लिख पाते हैं। आप किसी को पुश करोगे तो नहीं लिखेगा, उसको हर तरह के बच्चे होते हैं। तो हम अगर रिसर्च यूँ नहीं है कि आपको एक ही डायरेक्शन में कुछ रिसर्च करना है या आप पिपेट, ब्यूरेट और टेस्ट ट्यूब लेके ही काम करोगे तो ही रिसर्च होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ प्रिवलेंट कंडीशन है इस तरह की कि उसमें कुछ आप प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हो, तो आप एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी कर सकते हो। आप अपने कैंपस में ही, लाइक अब जैसे हम कुछ बच्चों के साथ कर भी रहे हैं, जेनरिक वर्सेस ब्रांड मेडिसिन, तो इसी पे ही हम एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करके उनके व्यूज ले सकते हैं। तो ये भी एक तरह की रिसर्च है। तो आपको जरूरी नहीं, हर तरह के बच्चे होते हैं, कई बच्चों का साइंटिफिक टेक्निकल साउंड होते हैं तो वो उस तरह की लैब में काम करना है। कुछ इस तरह के होते हैं तो उनको इस तरह से बच्चों से बात करना, इंटरेक्ट करना पसंद है, तो उनको उस हिसाब की रिसर्च दे दो। राइट, बिल्कुल। रिसर्च तो रिसर्च है। तो हम ये चूज करते हैं कि कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, कौन सा फास्ट लर्नर है। मैम, हम जैसे देख रहे हैं दुनिया बदल रही है, हर दूसरे दिन एक नई बीमारी, हर दूसरे दिन एक नई मेडिसिन। तो मैम, आप स्टूडेंट्स को कैसे कनेक्ट रखते हैं कि फाउंडेशन से, कि जो सिखाया गया है आपको, आपके ज़माने में जो सिखाया गया है और आज के टाइम में जो सिखाया जा रहा है, उन चीज़ों को कनेक्टेड कैसे रखा जाता है? तो एक्चुअली क्या है कि फार्मेसी में बेसिक नॉलेज तो ज़रूरी है ही है, उसके साथ साथ स्टूडेंट डे बाय डे अपने आप को अपडेट रखे न्यू टेक्नोलॉजी। तो उसको जो भी न्यू प्लेटफॉर्म, जो भी साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स है, उस पर जो न्यू रिसर्च आ रही है, कुछ नए मॉलिक्यूल्स आ रहा है, कोई रोबोटिक नया डेवलपमेंट है किसी के लिए, लाइक यू नो AI, मशीन लर्निंग, ये हर किसी फील्ड में आ ही गई है। राइट। तो स्टूडेंट को अपने आप को उसी जो ढर्रा पुराना है वो तो आना ही चाहिए, वो तो बेसिक है, एक्चुअली वो तो बेस है। तो बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही शुड इनकलकेट सच टाइप ऑफ हैबिट इन हिम और हर कि वो कीप ऑन अपडेटिंग हिम और हर सेल्फ विद टाइम, with new techniques, with new technologies. So उस केस में उसको खुद को भी अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए he or she can join short term any courses like clinical trials है, many softwares are there. तो उन सॉफ्टवेयर का जहाँ यूज हो रहा है
तो अगर वो भी अपने साथ उस तरह की चीज़ें अपने आप को सीखता रहे, कुछ कोर्सेज कर लिए, तो इस तरह से वो इस नए जो चैलेंजिंग एरा है उसमें अपने आप को कॉम्पिटेंट बना के रख सकता है विद ऑल दीज थिंग्स। फाउंडेशन क्योंकि बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन नो डाउट वो तो जरूरी है, उसी का ही ये सब एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट तो है, वो तो आना ही चाहिए, लेकिन उसमें ये सब चीजें कैसे आप इम्बाइब करते हुए चलोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट मैम। सो मैम, एज वी नो कि आप स्कूल ऑफ फार्मेसी की एचओडी भी है, तो आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इट्स अ टफ जॉब, हम समझते हैं। तो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं एज अ स्टूडेंट, कि कैसे इनको समझाया जाए, बताया जाए? एक्चुअली है तो टफ जॉब ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को ये लगता है कि क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो अगर स्टूडेंट थोड़ा प्रोफेशनली अपने आप को मेंटेन, मतलब उस वे में रहे, और पंचुअलिटी भी रहे, और अपने को थोड़ा एथिकली उस तरह से मोल्ड करे अपने आप को, कि आई हैव टू फुलफिल ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू सर्व द सोसाइटी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। तो उसके जो एक कम्युनिकेशन स्किल है वो अपने अच्छी रखे, इंटरपर्सनल स्किल, ह्यूमन बिहेवियर, जो अपना इंटरपर्सनल बिहेवियर है, तो ये सब चीज़ें तो हम उनको उस तरह से गाइड भी करते हैं कि यू हैव टू सर्व द ह्यूमैनिटी, यू हैव टू सर्व द सोसाइटी। तो आपको एक उस तरह की सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट है कि इस तरह से, मतलब आप क्या बोलते हैं उसको, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर, क्योंकि आपको मेडिसिन और उनकी सेफ और इफ़ेक्टिव यूज़ उससे रिलेटेड, पेशेंट कंप्लायंस से रिलेटेड, तो बहुत सारी, बिकॉज हेल्थ केयर के आप एक इंटीग्रल पार्ट हो बीइंग ए फार्मासिस्ट, तो आपको बहुत सारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, तो आप अपने आप को उसी तरह से ही तैयार करो, है ना। तो आपको अपने थोड़ा बिहेवियर वाइज भी उसी तरह से मैच्योरिटी लानी पड़ेगी अपने उसमें। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल इज अ वेरी फर्स्ट थिंग इन अ फार्मेसी फील्ड, है ना, क्योंकि आपके ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारियां आएंगी इस फील्ड में, राइट। सो मैम, हमने देखा है यू हैव रिटन अ नंबर ऑफ रिसर्च पेपर, है ना, और एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं, रिसर्च पेपर लिखना मुझे नहीं, मतलब बहुत टफ जॉब लगती है, ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, लेकिन बहुत टफ जॉब है, बहुत समय लगता है, और अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो है मुश्किल, बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं इस चीज को, क्यों ही लिखना है। बिल्कुल। तो मैम, आप स्टूडेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करते हैं रिसर्च पेपर लिखने के लिए, उनको कैसे इनकरेज करते हैं? नो, आई कैन यूज अ टिप। राइट, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मेरे को ये लगता है कि रिसर्च के लिए उनके अंदर से ही थोड़ी सी इंस्पिरेशन आनी चाहिए बच्चे को, तभी लिख पाते हैं। आप किसी को पुश करोगे तो नहीं लिखेगा, उसको हर तरह के बच्चे होते हैं। तो हम अगर रिसर्च यूँ नहीं है कि आपको एक ही डायरेक्शन में कुछ रिसर्च करना है, या आप पिपेट, ब्यूरेट और टेस्ट ट्यूब लेके ही काम करोगे तो ही रिसर्च होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ प्रिवलेंट कंडीशन है इस तरह की कि उसमें कुछ आप प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हो, तो आप एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी कर सकते हो, आप अपने कैंपस में ही, लाइक अब जैसे हम कुछ बच्चों के साथ कर भी रहे हैं, जेनरिक वर्सेस ब्रांड मेडिसिन, तो इसी पे ही हम एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करके उनके व्यूज ले सकते हैं, तो ये भी एक तरह की रिसर्च है। तो आपको जरूरी नहीं, हर तरह के बच्चे होते हैं, कई बच्चों का साइंटिफिक टेक्निकल साउंड होते हैं, तो वो उस तरह की लैब में काम करना है। कुछ इस तरह के होते हैं, तो उनको इस तरह से बच्चों से बात करना, इंटरेक्ट करना पसंद है, तो उनको उस हिसाब की रिसर्च दे दो। रिसर्च तो रिसर्च है। तो हम ये चूज करते हैं कि कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, कौन सा फास्ट लर्नर है, किसका टेक्निकल प्रैक्टिकल। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर्बल का आजकल बूम है, तो अगर उनको लगता है कि इस कुछ नए हर्बल प्लांट से इसका एक्सट्रैक्ट की अगर कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनिक, कुछ भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी अच्छी है, न्यूज़ में कुछ नया आ गया उस तरह से, तो आप उस पौधे को लाओ या प्लांट को और प्रोक्योर करके उसका एक्सट्रैक्ट निकालो, उसका कुछ भी क्रीम, कॉस्मेटिक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एनीथिंग। कहीं भी आप रिसर्च के लिए कोई आइडिया तो है नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। तो
तो वो बच्चे का हम इंटरेस्ट देखते हैं कि ये इस चीज को कैसे, किस टाइप का है, इसका ज्यादा झुकाव किधर है, बिल्कुल बिल्कुल तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिसर्च, तो इस तरह से हम मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम भी रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च एक वही नहीं है कि टेस्ट ट्यूब लेके लैब में रहोगे तभी रिसर्च होगी, आप भी कर सकते हो। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एज ए स्टूडेंट आपको क्या इनकरेज हुआ, क्या आपकी इंस्पिरेशन थी कि आपको इसी में करियर बनाना है? हाँ, जब मैं फार्मेसी उस टाइम वे बैक टू 1993, उस टाइम इतना ये नया था एक्चुअली, नई चीजें आ रही थी, फार्मेसी के बारे में सुन रहे थे कि बी फार्मा भी एक कोर्स आ रहा है। अदरवाइज हम जब पढ़ रहे थे 9th-10th तो भी ये था कि हाँ या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल, दो ही लाइन थी। तो फिर उसमें ये था कि बहुत बच्चे compete करते थे, तो फिर उनके पास बी प्लान नहीं रहता था। तो मेरे पास बायोलॉजी थी, तो मेरे फादर डॉक्टर हैं, तभी से मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई इस तरह का कोर्स आ भी रहा है और उसमें लोग जा भी नहीं रहे, और कितनी डोजेस फॉर्म है, क्योंकि पापा के पास में देखती रहती थी अलग अलग तरह की मेडिसिन, तो एक इंटरेस्ट था कि ये भी तो कहीं बनती है और इससे रिलेटेड अगर कुछ नया आ रहा है, तब मैंने सोचा कि मेरे को बी फार्मा करना है। और उस टाइम मैं बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये था कि मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। कि ये सब उस तरह के जॉब हैं, इंजीनियर बनना और ये, तो मेरे को तो ड्रग इंस्पेक्टर बनना है और मेरे को तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही काम करना है। तो फिर धीरे धीरे और चीजें समझ में आती गई, और फिर धीरे जब मैंने बी फार्म एंड 8th सेम में आई, तब मेरा R&D की तरफ, रिसर्च की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन हो गया। एंड तब मैंने सोचा नहीं, अभी तो इनको और एक्सप्लोर करना है, अभी जॉब नहीं, अभी कुछ और आगे पढ़ना है। फिर मैंने एम फार्म सोचा, फिर PhD, और फिर मैंने जामिया हमदर्द से भी ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में पोस्ट डॉक किया। तो इस तरह करके से बहुत सारी नई नई चीजें जब आप पढ़ते हो और इंटरेस्ट डेवलप होता है तो चलते रहते हो, फिर रुकने का मन नहीं करता। हाँ, फिर नहीं तो इसलिए जो चीज सोचा था फिर और जो इंटरेस्ट डेवलप होता गया, फिर उस दिशा में, डायरेक्शन में चलते गए। तो इस तरह से करके आज फिर यहाँ है बच्चों को पढ़ाने के लिए। एकेडमिक्स में मुझे फिर अच्छा लगा, क्योंकि आप जब जॉब करते हो तो वो वही रुक गया काम। इसमें क्या है, जब जो भी रोज नया कुछ करिकुलम में ऐड हो रहा है, नई रिसर्च कुछ और हो रही है, तो आपके पास एक लैब है, आप कभी भी बच्चों से या आप खुद मिलके आप नई डायरेक्शन में चलते हो, तो आप रोज नया सीखते हो। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ मुझे एकेडमिक्स में जाना चाहिए। Wow, that was amazing, ma'am. It was an amazing talking to you. Thank you so really, same here. So thank you so much, ma'am. It was great talking to you. It was an amazing conversations. And thank you everyone. This was Dr. Mamta Bishnoi with us, and we will see you again soon. Thank you.